Hello student, myself Kuljinder Singh from DAV Public School, Shri Muktsar Sahib. How are you beta? Hope you all are well. So let's start beta new chapter number 2, relation and function. Beta today we are going to start chapter number 2, exercise 2.1, chapter name beta relation and functions. First of all beta topic Cartesian product of two sets. Now beta first definition order pair. Now beta order pair if A and B are two non-empty sets. बेटा नॉन एम्प्टी मीन्स कम से कम बेटा एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ए और बी में. ए सेट और बी सेट में बेटा कम से कम एक एलिमेंट श्योर है बेटा वो एग्जिस्ट करना चाहिए. कोई सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए. तो नॉन एम्प्टी सेट पिक करने हैं. देन बाय एन ऑर्डर पेयर we mean A belongs to A and B belongs to B. We will pick one element from A set and second from B set. Then a pair AB is called a ordered pair. Better here remember that order is most important. That is A, B and BA are distinct, means are not equal if A not is equal to B. सपोज बेटा मेरे पास A और B है, दोनों एलिमेंट क्या है बेटा डिफरेंट. तो ऑर्डर अगर मैं फर्स्टली बेटा पेयर रख रहा हूँ AB, सेकंड रख रहा हूँ BA, तो इसका मीनिंग ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल 3, 4 नॉट इज इक्वल टू 4, 3. So order is most important. Order means बेटा 3 फर्स्ट पहले लिखा तो 3 फर्स्टली लिखा हुआ है, 4 बाद में लिखा हुआ है. इसमें बेटा 4 पहले लिखा हुआ है, 3 बाद में लिखा हुआ है. तो इसका मीनिंग अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं तो एलिमेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ऑर्डर पेयर ऑर्डर का बेटा जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है. दोनों डिफरेंट है. नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. सपोज बेटा XY is equal to AB. XY is equal to AB if and only if first element equal to first element, that is X will be equal to A and second will be second, that is Y is equal to B. For example, suppose beta we have x2 is equal to 3y. Then x is equal to 3 and y will be 2. Now beta next definition Cartesian product. If A and B are two non-empty sets, again beta दोनों सेट क्या होने चाहिए, non-empty. Then the set of ordered pair AB where A belongs to A and B belongs to B is called a Cartesian product of AB and denoted by A cross B. For example, suppose beta we have A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 4, 5. Then A cross B is equal to beta firstly choose 1 from A set and 4 from B set. We get first pair. Now again beta again pick beta first one element from A and second element beta 5 from B. Now beta second element from set A, that is 2, and first element of set B, that is 4. So beta third pair will be 2, 4. Similarly beta 2, 5, 3, 4 and 3, 5. We get 6 pairs.
Then beta set of these 6 pairs is called a Cartesian product of A cross B, A and B. Now if we have to find B cross A, then firstly we will choose first element from set B, that is 4, and then beta 1 from A and 4 2 4 3 5 1 5 2 and 5 3. It is a B cross A. Now better note that if at least one of them, A or B, if A is equal to 5 or B is equal to 5, then A cross B is equal to 5 and B cross A is also 5. Now beta if A is equal to 1 2 3, then beta A cross A will be 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. मीन्स बेटा मैंने ए का फर्स्ट एलिमेंट पिक किया 1, उसके साथ बेटा तीनों फुली ए के मीन्स कंप्लीट ए के बेटा एलिमेंट्स पिक करने हैं. 1 के साथ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा. तो 1 के साथ पहले 1 ने पेयर बनाया बेटा, फिर 1 के साथ 2 ने, फिर 1 के साथ 3 ने. सिमिलरली बेटा मैंने सेकंड एलिमेंट चूज किया 2, तो 2 के साथ भी बेटा वही 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट पिक करेंगे और एक एक पेयर बनाएंगे हम. सिमिलरली बेटा 3 के साथ भी ऐसा प्रोसेस करेंगे. 3 एक एलिमेंट पिक किया है, उसके साथ बेटा ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी एक एक रख के बेटा पेयर बनाएंगे. तो टोटल एलिमेंट्स क्या हुए बेटा मेरे पास 9. तो बेटा ए क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए. ऐसे बेटा हम सिमिलरली बेटा ए क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं. ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्यूब. ठीक है, वैसे बेटा आपके सिलेबस में ए स्क्वायर तक ही है, इससे ज्यादा नहीं आएगा. नाउ बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, नंबर इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी. Suppose beta we have number of A is equal to 2 and number of B is equal to 4. Then number of A cross B will be 2 cross 4, that is 8. Similarly beta number of B cross A is equal to number of B into number of A, that is 4 cross 2 will be 8. तो बेटा नंबर ऑफ A क्रॉस B और नंबर ऑफ B क्रॉस A ये हमेशा क्या रहेंगे बेटा, इक्वल्स. नाउ बेटा सम important question from exercise 2.1 from NCERT book. So beta first question, given that 2x plus y 7, this is a first pair, 5 y minus 3 सेकेंड पेयर. तो ये दोनों बेटा पेयर क्या है, इक्वल. वी हैव टू फाइंड x एंड y. नाउ बेटा फर्स्ट पेयर फर्स्ट एलिमेंट 2x प्लस y विल इक्वल 5. 2x प्लस y इज इक्वल टू 5. सिमिलरली बेटा सेकेंड पेयर y minus 3 इज इक्वल टू 7. दिस implies y is equal to 7 plus 3. We get 10. Now beta put y is equal to 10 in first equation. We get 2x plus 10 is equal to 5. 2x is equal to 5 minus 10. 2x is equal to minus 5. X will be
-5/2 आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू A1 A3 A5 B1 B3 B5 देन फाइंड B क्रॉस A। तो बेटा हमें पता है जो A क्रॉस B में जो फर्स्ट पे एलिमेंट होंगे जैसे A B B B, तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा, A सेट को। तो ऑब्वियस है बेटा वी गेट A इज इक्वल टू A एंड B, टू एलिमेंट्स आर इन सेट A। अगेन बेटा B सेकेंड एलिमेंट, जो बेटा सेकेंड किसी भी पेयर में सेकेंड एलिमेंट्स हैं बेटा वो किसको बिलोंग करेंगे, B सेट को। तो इसका मतलब बेटा B सेट में कौन कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, 1 3 5 1 3 5। बट सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं, मींस एक एलिमेंट को एक बार लिख सकता हूं। तो मैं मैक्सिमम कितने एलिमेंट लिख सकता हूं बेटा B सेट में, 1 3 5। तो बेटा अब हमारे पास बेटा A और B आ चुके हैं, वी हैव A एंड B। नाउ बेटा बाय डेफिनेशन B क्रॉस A विल बी 1A 1B 3A 3B 5A and last element will be 5B। नाउ बेटा अगर देखा जाए तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट था मेरा A1, A क्रॉस B का फर्स्ट एलिमेंट था बेटा A1, तो B क्रॉस A में बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1B। मींस मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर बेटा ये मैं A और B नहीं भी फाइंड करूंगा तो चल जाएगा, मैं सीधा क्या कर सकता हूँ बेटा डायरेक्ट मेथड से, मैं जो A क्रॉस B है, अगर मैंने B क्रॉस A फाइंड करना है, उल्ट करना है, तो बेटा मैं उसके ईच एंड एवरी पेयर को बेटा उसका ऑर्डर क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। जैसे A1 है उसको क्या लिख दूंगा 1A, A3 है तो उसको क्या लिख दूंगा 3A, सो क्लियर बेटा। ना बेटा दिस टॉपिक कवर योर एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एक्सरसाइज बुक NCERT। तो प्लीज ट्राई सम क्वेश्चंस। तो जूम क्लास में बेटा एक्सरसाइज 2.1 के डाउट्स पे डिस्कशन करेंगे। जो आपके डाउट होंगे वो बेटा लिख लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बेटा मैं PDF सेंड कर दूंगा एक्सरसाइज की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।